start here. So we all know stock market is a place where we can make money. Let's cover all the factors why should we go investing into stock markets. The first factor to be considered here is higher returns. What is higher returns basically? I hope you guys all went through the write-up that I sent it on the group. Higher returns basically means if you compound all the returns, yearly returns of stock market from past so many years, you get an average around 16% CAGR. On an average, a person investing in stock market makes around 16% yearly. If we adjust for inflation after that, also that particular person would be making around 12% returns. How? 16% annually minus 4% would be his inflation, and after that he is making 12%. That is the real return. The second point to be considered here is high liquidity. I would explain by this by the help of an example. For an example, if you are investing in real estate here, and you know this corona has erupted, people are gonna work from home, and you hold a office place, and you need to sell it. You need to sell it, and you tell the broker that you want to sell it. The broker says, I will let you know. You can't sell it in matter of seconds, or like you just want to sell it, you can't sell it in 1-2 days. But here in stock market there is so much of liquidity, like if you want to exit your position, exit your investments at any point of time, you can just be at your home, just press the sell button, and your investments would be sold off. So here there is a lot of liquidity in stock market. The third point is low investment cost. अगर हमको यहाँ इन्वेस्टमेंट करना है तो इसका जो कॉस्ट रहता है, मतलब जो ब्रोकरेज हम देते हैं, वो बहुत मिनिमल रहता है। यहाँ पर कुछ इतना ज्यादा ब्रोकरेज नहीं रहता। अकाउंट ओपनिंग चार्ज रहता है जो वन टाइम चार्ज है, एक अकाउंट मेंटेनेंस है, इट्स अराउंड 50-100 रुपीज, एंड द थर्ड इज योर the brokerage you pay for buying and selling out companies or making investments, and that all the cost is very very low. A person like us can afford. उसके बाद जो important point है यहाँ पे वो है हमारा dividend. अगर हम invest कर रहे हैं कोई कंपनी में and that company particularly makes money, okay, so it would give you a part of its profit. The main aim of our investment is multiplication of money, but multiplication of money के साथ हमको company dividend भी दे रही है यहाँ पे. The second most important thing, which is the generation of income, which helps us in generation of income. The fifth point here is capital gains. What is actually capital gains? Let us understand that. For an example, I bought a company which was trading at 50 odd bucks, 50 rupees, and I sold that company for 80 rupees. I made 30 rupees on that company, and this is my capital gains. The 30 rupees I made is my capital gains here. The sixth point is the low investment needed. Like for an example, if you have around 100 rupees, 500 rupees, 1000 rupees, 5000, the maximum the better. But if you have the lowest amount, you can still go and invest in the stock market. So the lowest investment you have, with that you can make investments and multiply your money. Okay, apart from this, the second last point is ownership of company. इफ मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि अगर मेरे को कोई कंपनी पसंद है तो मैं उस कंपनी का एक पार्ट ओनर रहूँ, चाहे मेरी स्टेक कितनी भी छोटी हो, बट मैं वो कंपनी में ओनरशिप रखूँ. जैसे मेरी फेवरेट कंपनी है रिलायंस, तो रिलायंस में मेरी ओनरशिप है, चाहे वो कितनी भी छोटी स्टेक हो, बट आई एम द ओनर ऑफ द कंपनी फॉर दैट स्टेक. तो कैसा रहता है, कितने लोगों को लगता है कि मैं ये कंपनी बहुत ज्यादा यूज करता हूँ तो मेरे को इसका ओनर बनना है. Now this is important too. Ownership of company. You are a part of, you are owner of the company. The last point here and the most important is convenience. आप कोई भी बिजनेस कर लो, आप कैसे किसी भी पैसे कमा लो, लेकिन जो कन्वीनियंस स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने में है वो कन्वीनियंस किसी भी नहीं. यू कैन बी लाइंग ऑन योर काउच विथ योर फेवरेट टी एंड कॉफी इन योर हैंड एंड बी जस्ट इन्वेस्टिंग एंड मेकिंग मनी. The most important thing is convenience. The thing is, you can be in your couch, you can drink your tea and sip in your tea and coffee and multiply your money and make investments. Okay, let's move further. So we all know stock exchange is a place where the buying and selling of shares take place. The companies are listed here and the buying and selling of shares take place. बचपन से मेरे घर पे तो बोला जाता है, आप लोगों के घर पे भी बोला जाता होगा कि this is a place, this is called सट्टा बाजार.
like people bet here. But to be honest, me being a guy from stock markets, this place is not a satta bazaar. This is a place where the huge wealth is created, and with it huge wealth is destroyed. The people with no knowledge destroy wealth, and people with knowledge create wealth here. So this is a place where buying and selling takes place. Apart from that, there are some certain factors which affect the stock market, and the most important factor is economic problems which affect the whole stock market. अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो उसका क्वार्टर रिजल्ट खराब आया, या फ्रॉड निकला कंपनी में कुछ, या कुछ स्कैम निकला, या कंपनी ने ज्यादा डेट ले ली और उस पर डिफॉल्ट कर दी, तो उस कंपनी को अफेक्ट करेगा. बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पूरी मार्केट को कौन सी चीज अफेक्ट करती है. मार्केट को अफेक्ट करने वाली चीज क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. अगर फॉर एग्जांपल जैसे कोरोना क्राइसिस आया, सो इफ एवरीवन न्यू दैट दिस इज गोना अफेक्ट द होल इकोनॉमी, डैम्पन द इकोनॉमी, हमारा ग्रोथ रेट कम हो जाएगा, कंपनीज वोंट बी एबल टू परफॉर्म, वोंट बी एबल टू ग्रो. तो ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ रही है, तो ये मार्केट को अफेक्ट करेगी. एंड आगे हम चार्ट्स देखने वाले, वी वुड अंडरस्टैंड दैट हाउ इट अफेक्टेड एंड हाउ द फॉल वाज मेड. उसके अलावा द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, वी बीइंग एन इमर्जिंग इकोनॉमी, लाइक हम ग्रोथ, हमारी ग्रोइंग कंट्री है ये. सो दिस वी ऑल आर ग्लोबली कनेक्टेड. सो व्हाट अफेक्ट्स अस इज ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर, जैसे अगर यूएस चाइना ट्रेड वॉर हुआ, या यूएस ने हम पर कुछ सैंक्शंस लगा दिए, तो वी ऑल आर ग्लोबली कनेक्टेड. अ वन ट्वीट फ्रॉम डोनाल्ड ट्रम्प अफेक्ट्स आवर मार्केट्स. This is the power of being globally connected. So we need to consider all the factors which affects our investments, and we need to act accordingly. Okay. So let us understand what all do you need. हम तो समझ गए भी स्टॉक मार्केट क्या है और हमको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है. बट अब जरूरी क्या है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए? All of the people who are attending my session, I guess all are 18 plus and having a PAN card. Along with that, we have a savings account too. The most important thing is a PAN card here, and Aadhaar card, a savings account. The Demat account is the second most important thing for trading and investing in stock markets. So this Demat account can be created through broker. There's a process in the next slide itself. Apart from that, mobile. We being youngsters, youth, we all have a mobile. Every one of you attending this session would be attending through the help of a mobile and an internet connection, thanks to Jio, Reliance Jio. So we all have a mobile and internet connection. कंपनी इन्फो अगर हमको है, कंपनी के बारे में कुछ पता है हमको कि कंपनी ग्रोइंग है, कंपनी कैसे परफॉर्म करती है लॉन्ग टर्म में, तो दैट्स एन एडेड एडवांटेज. द लास्ट पॉइंट इज मनी. जैसे मैंने बताया आपको, स्टॉक मार्केट में पैसे बनाने के लिए पैसे चाहिए. दिस इज द आर्ट. मनी से मल्टीप्लाई हो रहा है मनी. वी आर मेकिंग मनी विद द हेल्प ऑफ मनी. मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन स्टॉक मार्केट. हाउएवर लेस इट मे बी, हाउएवर मोर इट मे बी, बट इट्स फाइन. बट द कंपल्सरी थिंग इज वी शुड हैव मनी. 500 है, 1000 है, we have 2000, 5000, 10000, depends on person to person. How can one person open a Demat account? So what is a Demat account? First let us understand that the full form of this is dematerialized account. What does this actually mean? You are holding securities in your name online. This whole thing is online, over servers, over cloud. Okay, so आपको अगर अकाउंट खोलना है तो आप एक ब्रोकर के थ्रू खोल सकते हो. देयर आर अ लॉट ऑफ ब्रोकर्स इन इंडिया who run the opening service of. You can open an account through broker. I have 3 broking accounts. The 3 broking accounts are one for Zerodha, one from Kotak Securities, and one from Motilal Oswal. These all depends on whatever I have to do. I have to do trading, I have to make investments, I have to make short-term investment. Depending on that, I shift on to account. Okay, so you need to open an account through a broker, and this is a totally hassle-free process if you can do it online. आपको क्या करना रहता है इसमें? You need to click a picture of your PAN card, Aadhaar card, and apply it on the broker's website. I'll be sending across the link. If any one of you need to open an account, you can open it through that link. आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए. यू नीड टू पे अ मिनिमल अकाउंट ओपनिंग फीस विच इज अराउंड $300. लाइफ टाइम फीस फ्री रहेगा. फिर आपका अकाउंट ओपनिंग वन टाइम चार्ज है, उसके बाद कभी आपको चार्ज नहीं लगेगा. तो ये फीस कितनी है? अराउंड ₹300. आपको 2 दिन रुकना पड़ता है और 2 दिन के अंदर आपको एक ईमेल पे आपकी अकाउंट की डिटेल्स आ जाएगी. आपको जब आपके अकाउंट की डिटेल आ जाएगी तो यू कैन जस्ट लॉग इन, मेक इन्वेस्टमेंट्स, ट्रांसफर मनी. दिस इज ऑल इज डन ऑनलाइन जस्ट थ्रू योर मोबाइल फोन. उसके अलावा कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज में नहीं है.
आपको एक मेल मिलेगा और आपको उसके अंदर आपका यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाएगा. So this is the way how the account is created, and then you are welcome to the place of stock market for making money. So now we understood about stock market, we understood how we can make money. Let us move on to the ingredients of stock market, you can say. The first and the most important is indices. अगर आप में से किसी को बुखार हो जाता है तो अगर घर पे हमारा टेम्परेचर चेक करते तो किस चीज से चेक करते? इट इज अ थर्मोमीटर. व्हाट इज अ थर्मोमीटर? अ थर्मोमीटर इज अ बैरोमीटर फॉर चेकिंग अ टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन. द सेम वे indices are a barometer for checking the performance of an economy. Okay, I hope you all are getting it. So indices अब होता क्या है एक्चुअल में? आप कभी भी अगर न्यूज में देखोगे कोई एक इम्पोर्टेंट डिसीजन आया गवर्नमेंट से, या इकोनॉमी पे कुछ अफेक्ट हुआ है, या चाइना यूएस का वॉर हुआ है, ऐसा कुछ भी अगर होता है तो हमारी स्टॉक मार्केट पे अफेक्ट करता है. एंड वी हर्ड सेंसेक्स फेल बाय 1500 पॉइंट्स, निफ्टी फेल बाय 500 पॉइंट्स. ये न्यूज में बहुत चलता रहता है. एक नॉर्मल न्यूज में अगर आपके फोन में इकोनॉमिक टाइम्स भी है तो आपको उस पर भी पता चल जाएगा कि स्टॉक मार्केट पे आज क्या अफेक्ट हुआ है. What is this actually? A index, a Sensex and a Nifty is ये जो है ये एवरेज है कंपनीज का. मतलब कुछ गिनी चुनी कंपनीज है जो सेक्टर्स की टॉप कंपनी है. हर सेक्टर में से एक टॉप कंपनी को निकाला गया है और उस टॉप कंपनी को मिला जुला के इन कंपनियों के शेयर प्राइस का एवरेज निकाला गया है, एंड देन वी मेक अ इंडेक्स. So this is the average of companies. Best companies for each sector. This is a barometer for the economy, and an index reflects the equity market as a whole. I want to see how the equity markets are performing for past 10 years. I can check the Sensex and the Nifty. What is Sensex and Nifty now? Sensex is the index of Bombay Stock Exchange. We have two exchanges in India, namely the Bombay Stock Exchange and the National Stock Exchange. अब जो Bombay Stock Exchange का index है, it is known as the Sensex, और National Stock Exchange का index है जो है वो है Nifty. सेंसेक्स के अंदर वी हैव 30 कंपनीज. मैं आपको साइट पे लेके आके भी दिखाऊंगा कैसे वर्क हो रहा है, क्या है ये. निफ्टी है जिसके अंदर 50 कंपनीज है, टॉप 50 कंपनीज फ्रॉम ईच सेक्टर. ओके, एंड दीज कंपनीज का एवरेज लेके जो प्राइस आ रहा है वो निफ्टी का एक्चुअल प्राइस हो जाता है. तो मेरे को अगर मार्केट गॉज करना है, मेरे को देखना है मार्केट कैसे परफॉर्म किया है, तो मैं निफ्टी और सेंसेक्स को देख लेता हूँ. ओके, सो दीज आर द बैरोमीटर फॉर गेसिंग द इक्विटी मार्केट एज अ होल एंड द इकोनॉमी. I have just put on the chart here and I have purposely ignored the corona fall here. The corona crisis में अभी जो recently जो fall आया था वो मैंने ignore किया, क्योंकि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि long term में हमने देखा है equity कभी भी perform कर रहा है. If you see from 2000 to 2009 and then from 2009 we are actually performing well. मतलब हमारी markets grow हो रही है and we are earning a fabulous return. Let's move on to the website. This is the Bombay Stock Exchange website, the BSE India, और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सेंसेक्स दिया हुआ है, S&P BSE सेंसेक्स. नाउ व्हाट आई मेंशन, सेंसेक्स इज अ इंडेक्स. ये जो है ये एक इंडेक्स है, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है. अगर हम ये इंडेक्स का प्राइस देखें यहाँ पे तो इट्स 34,287, बट दिस इज जस्ट एन इंडेक्स. यू डोंट एक्चुअली नीड 34,000 रुपीज फॉर इन्वेस्टिंग. ये जो प्राइस मिला है ये कुछ कंपनीज जो 30 कंपनीज है उनका एवरेज निकाला गया है, एंड वो एवरेज निकालने के बाद ये प्राइस डिराइव हुआ. ओके, ऑल 30 कंपनीज में से जो 30 कंपनीज में से अगर समझो 16 कंपनी का प्राइस बढ़ा था लास्ट ट्रेडिंग डे पे फ्राइडे को, और अगर समझो 14 कंपनी का प्राइस गिरा है, तो उन सब का एवरेज निकाल के ये प्राइस डिराइव हुआ है 34,287. ऑल द कंपनीज दैट आर हियर वी कैन सी दैट हियर. द फर्स्ट कंपनी इज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, which is actually risen by 7.9% nearly. You guys can't see the site? No. Now? Yes. So as you can see, this is the site. This is the site of the Bombay Stock Exchange, bseindia.com. या आप लोग के फोन से भी चेक कर सकते हो. यहाँ पे जो मैं ओपन किया हुआ है S&P BSE Sensex. This Sensex as I talk is an index of a stock market. इंडेक्स है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और हम जो यहाँ पे रेट देख रहे हैं
34,287. This is the average of all the prices of the companies. जितनी भी कंपनी बड़ी है सेंसेक्स में, जितनी कंपनी माइनस में है, उन सब का एवरेज निकाला गया है. Okay, and we are looking at this price. It's not compulsory you should have 34,000 to invest. This is just an index to measure how the economy or the equity markets are performing. Let us see which are the companies that are mentioned in Sensex. These are the most liquid companies and the best companies from all the sectors. As we can see here, it's State Bank of India here, which is trading around 187, and Friday को जब market बंद हुई थी तो ये 7.90% चढ़ के बंद हुआ है इसका भाव. अगर हम देखेंगे SBIN, it's stating 7.90% plus and it's in green color, which specifies that this particular company का जो शेयर का प्राइस था वो 7.90% से बढ़ा है और बढ़कर बंद हुआ है, नियरली 8%. आप अगर FD में भी पैसा रखते हो तो आपको कम से कम 6 to 8% ईयरली मिलता है. ये पर्टिकुलर कंपनी ने आपको एक दिन के अंदर ही इतना रिटर्न दे दी है. उसके अलावा हम देख रहे हैं टाटा स्टील है. दीज आर ऑल द 30 कंपनीज हियर फ्रॉम द सेक्टर्स, द बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज. SBIN, टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक, नेशनल थर्मो इज 98 रुपीज का कंपनी, और वो खुद कंपनी भी 3% ऊपर है. वो दिन 3% ऊपर है वो पर्टिकुलर कंपनी. इट्स ट्रेडिंग एट 98 rupees. And if you want to buy National Thermal Power Corporation and you think this company is gonna outperform, this company is gonna do well, you just need, अगर एक शेयर खरीदना है आपको तो उसके लिए आपको सिर्फ 98 rupees चाहिए. And now I don't think the each one attending my session doesn't has 98 rupees to invest in a company. This is not a recommendation, but I am proving how less amount could be invested in the stock market and you can generate return. Apart from that, we have Axis Bank, ICICI, Larsen and Toubro, ONGC, Bharti Airtel. These are the total 30 companies. Now the green color, you can see the companies in green color are the companies जिसके भाव बढ़कर बंद हुए हैं, मतलब पॉजिटिव में बंद हुए, नियरली 2%, 8%, 6%, 4%. ये वो सारी कंपनीज है. नाउ यू कैन सी द रेड वन. These red ones are those companies जिनके भाव गिरकर बंद हुए, मतलब जो माइनस में बंद हुए हैं. So ITC है, Indian Tobacco Company, Sun Pharma, Pharmaceutical Company, Tech Mahindra, HCL Tech, Nestle India, which is trading 17,000 rupees. Everyone eats Maggi, right, from this session. And Maggi is a product of Nestle, and you can see the value it is demanding. Nearly 17,000 rupees का एक शेयर है. मतलब अगर आपको Nestle खरीदना है, आप सोचते हो कि मैगी और बिकेगा, नेस्ले का फ्यूचर है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड है, तो आपको 17,000 रुपीज चाहिए. इट डिपेंड्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी. इन्फोसिस IT कंपनी 703 पे ट्रेड करी है. बजाज ऑटो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, TCS. नाउ दीज आर द ऑल 30 कंपनीज जिसको हम ऐड करने के बाद जो वैल्यू पे आ रहे हैं वो ये वैल्यू है. एवरेज करने के बाद 34,287 इज द वैल्यू. So we actually got the fact that Sensex is trading at 34,287 and it's 306 positive. Now why is this 306 positive? Because majority of the companies from the batch of 30 companies are positive on Friday. Okay. Now let's move on to this was the Sensex. Now as I told you, we have two stock exchanges, the Bombay Stock Exchange and the National Stock Exchange. Bombay Stock Exchange का जो इंडेक्स था वो था Sensex. अब उसके बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है वो निफ्टी है. वी कम ऑन टू द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट. दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. वी कैन सी अ निफ्टी 50. Why it is Nifty 50? Because Nifty consists of 50 companies from all the sectors, the top performing companies. I hope you guys can see the NSE website, right? So this is the Nifty 50. This is the index of National Stock Exchange here. It is trading at 10,148. ये भी जो एवरेज मिला है हमको, जो एवरेज मिल रहा है हमको वो टॉप 50 कंपनीज का एवरेज मिला है. ओके, नाउ लेट्स वॉच आउट. ये जो आप यहाँ पे एडवांसेस देख रहे हो, दीज आर 40 कंपनीज निफ्टी में से पॉजिटिव में बंद हुई है और 10 कंपनी ही थी जो माइनस में बंद हुई. तो मार्केट एज अ होल में गॉज कर रहा हूँ तो मैं क्या बोलूंगा, मार्केट 1% अप बंद हुई है. कब? फ्राइडे को. इन अ वीक द मार्केट्स आर वर्किंग 5 days इन अ वीक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, एक्सेप्ट पब्लिक हॉलीडेज. अगर पब्लिक हॉलीडे वीकडे पे आ रही है तो वो दिन भी मार्केट बंद रहेंगे. उसके अलावा बेनिफिट क्या है यहाँ पे मार्केट के अंदर, सुबह 9 बजे मार्केट शुरू होती है और दोपहर में 3:30 तक रहती है. 6.5 hours, more than enough. Rest day you have rest
जितना भी दिन आपके पास पूरा टाइम है, आपको जो करना है, आपके शौक है, आपको जो करना है वो आप कर सकते हो. So this is, we are talking about Nifty here. Let's check out which are the companies in Nifty now. After session, if you all guys want to access these websites, you can just type in nscindia.com and bscindia.com. You would get onto these sites and you can check whatever you want. So this is the Nifty 50. Nifty 50 के अंदर जो 50 कंपनी है उसकी लिस्ट मेरे को यहाँ पर आ गई है. जो लिस्ट आप लोग अभी यहाँ देख रहे हो, which is Tata Motors, SBI and Infratel, Tata Steel, Hindalco, IOC. This is the list of the 50 companies which are consisting in Nifty. Okay, so अब यहाँ पर हम minute details देखते हैं कि ये companies के भाव क्या है, कितने पे ओपन हुई, क्या था उनका प्राइस, कितना परसेंट चेंज हुआ. Let's look on to Tata Motors. The Tata Motors is the first company. ओपन कितने में हुई थी ये कंपनी? 100 रुपए पे. कब? फ्राइडे को, जब मार्केट शुरू हुई थी सुबह 9 बजे, तो ये कंपनी खुली थी 100 रुपए पे. हाई कहाँ तक गई ये कंपनी की? नियरली 112.5. लो मतलब एक दिन के अंदर ये प्राइस मूवमेंट एक कंपनी का, एक कंपनी के एक शेयर का प्राइस मूवमेंट है यहाँ पर. 100 रुपए पे कंपनी खुली, उस कंपनी ने हाई बनाई 112.45 की, लो बनाई 99.05 का, और जब मार्केट बंद हुई 333 को, तो यहाँ जो LTP लिखा हुआ है, दिस इज द लास्ट ट्रेडेड प्राइस, मतलब जो लास्ट ट्रांजैक्शन हुआ बायर और सेलर के बीच में, वाज एट दिस प्राइस 111.95. ओके, तो ये जो आप 111.95, दिस इज द लास्ट ट्रेडेड प्राइस, एंड कंपैरेटिवली फ्रॉम फ्राइडे मॉर्निंग अप टिल फ्राइडे आफ्टरनून अप टिल 3:30, दिस कंपनी का शेयर प्राइस जो था वो 13.65% से पॉजिटिव था. मतलब इतना स्टॉक बढ़ के बंद हुआ. दिस इज द टोटल डबल ऑफ एफडी में आप नियरली 7% कमा रहे हो, यहाँ आप 14% एक दिन में निकाल रहे हो, भी एक पर्टिकुलर कंपनी में से. सो दिस इज टाटा मोटर्स. देन देयर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. यहाँ पर भी सेम है. दिस इज ओपन, हाई, लो, लास्ट ट्रेडेड प्राइस एंड द परसेंटेज चेंज, एंड हियर इज द रूपी चेंज. अगर रूपी में मैं देखूँ तो 13.45 रुपीज बढ़कर बंद हुआ है, परसेंटेज वाइज 13.65. द सेम वे SBI है, 176.55 उसका ओपन था, हाई बनाई कंपनी ने 189.80 का. मतलब एक पर्टिकुलर दिन में ये इतना प्राइस मूवमेंट दे रही है. अगर आपको लगता है आप नॉलेजेबल हो, आप स्मार्ट हो, आपको पता है, तो आप ये प्राइस मूवमेंट का भी बेनिफिट ले सकते हो, जिसके बारे में हम कल के सेशन में बात करेंगे. ओके, सो this is the low. The company came up until 176. Last traded price was 189. And the percentage change, if you check, is nearly 8.7%. So these are the 50 companies, namely Tata Motors, SBI, Infratel, Tata Steel, Hindalco, Indian Oil Corporation, which is trading at 86. Indian Oil Corporation हम पेट्रोल भराते हैं. This is the company Indian Oil Corporation, UPL, Grasim, Bajaj Finance. These are the namely 50 companies listed here. Now let's move on to the checking a particular stock. For investing in stock market, you need money. What prerequisites? Apart from that, you need to have an application which is the Money Control, to be updated with the news, what's going on, किस कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट है, मैंने जो कंपनी में इन्वेस्ट किया उसकी कुछ न्यूज आ रही है क्या, कुछ उस पे न्यूज है, या क्वार्टर रिजल्ट आ रहा है उसका, या बोर्ड मीटिंग है, या डिविडेंड अनाउंस की वो कंपनी ने. मेरे को उस सब पे नजर रखने के लिए मनी कंट्रोल करके एक ऐप है, वो आपको आपके फोन में इंस्टॉल करना पड़ेगा. ओके, let's check on to the favorite company of investors, that is Reliance. So let's check out how to look onto this website. आप जो यहाँ पे प्राइस देख रहे हो 1580. नाउ द मार्केट्स आर क्लोज सिंस इट इज अ वीकेंड, सैटरडे संडे है, तो मार्केट्स बंद रहती है सैटरडे संडे को. एन एडेड एडवांटेज टू ऑल द पीपल वर्किंग इन स्टॉक मार्केट. तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो 1580.60 है, दिस इज द प्राइस, द लास्ट ट्रेडेड प्राइस ऑफ द रिलायंस कंपनी. उसके एक शेयर का भाव कितना था? 1580.60. अगर NSE पे देखें तो 1581. दिस इज अ माइन्यूट डिफरेंस विच इज ड्यू टू वॉल्यूम्स एंड लिक्विडिटी. Volumes means the people trading in this particular stock. हम पिछला अगर देखें, प्रीवियस क्लोज वही कंपनी का था 1579.95,
और प्रीवियस क्लोज विच मीन्स थर्सडे को जब 3:30 बजे स्टॉक मार्केट बंद हुआ था तो ये कंपनी बंद हुई थी 1580 रुपीज पे. नाउ व्हेन ऑन फ्राइडे दिस कंपनी ओपनड अप, मतलब जब भाव खुले तो इट वाज ऑलरेडी 20 bucks अप. 1579 से बंद हुई 1580 पे और खुली 1600 रुपए पे. ये जो ओपन प्राइस है ये फ्राइडे का ओपन प्राइस है. और यहाँ पे जो आप देख रहे हो टुडे LH, व्हाट इज दिस टुडे LH? दिस इज टुडेज लो एंड टुडेज हाई. मतलब वो फ्राइडे एक पर्टिकुलर दिन के अंदर दिस कंपनी केम डाउन अप टिल 1574 एंड इट वेंट अप टिल 1617. मतलब इतना आपको प्राइस मूवमेंट मिला है. मैंने जैसे बताया आपको, आप अगर नॉलेजेबल हो आप प्राइस मूवमेंट का बेनिफिट्स उठा सकते हो. जैसे मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स टेक प्राइस मूवमेंट का बेनिफिट लेते हैं, तो आप लो पे लेके हाई पे बेच सकते हो. ये सब कर सकते हैं आप हम लोग मार्केट में, जिसके लिए नॉलेज चाहिए. ओके, सो दिस वाज द लो ऑफ द कंपनी, दिस इज द हाई ऑफ द कंपनी. एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे 52 वीक LH, 52 वीक LH मींस 52 वीक लो हाई. नाउ 52 वीक लो हाई इज 1 ईयर, 52 वीक इज अ ईयर, 1 ईयर. तो अगर हम देखें तो एक साल के अंदर 867 तक आई थी कंपनी, एंड नाउ वही कंपनी का प्राइस कितना है, नियरली 52 वीक हाई टच की. अगर हम जो फ्राइडे की बात करें तो 1617 की हाई कंपनी ने टच की है, और यहाँ पर भी देखें तो वही है. तो मींस दिस पर्टिकुलर कंपनी हैज हिट अ हाई ऑफ 1617.70 ऑन विच डे, ऑन फ्राइडे इटसेल्फ. अब हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है, बिजनेसेस बंद है, बट स्टिल द स्टॉक मार्केट इज वर्किंग एंड दिस पर्टिकुलर कंपनी हैज हिट अ 52 वीक हाई ऑफ 1617. अब हम जब चार्ट देखेंगे इसके बाद तो आपको पता चलेगा कि ये 867 भी, ये भी मार्च के अंदर ही आया था ये भाव, और मार्च से लेके अब तक का हमारा पैसा डबल हो चुका है अगर किसी ने रिलायंस में पर्टिकुलरली इन्वेस्ट किया था तो. ओके, सो आई होप यू गाइस अंडरस्टूड व्हाट आर वी चेकिंग हियर. अगर हम NSE पे देखें तो 1573 तक आई थी कंपनी. ये पर्टिकुलर कंपनी का शेयर 1573 तक का आया था और हाई में 1618 रुपीज तक आया था. सेम इज फॉर 52 वीक लो हाई. यहाँ पे आप जो बिड प्राइस देख रहे हो, when the markets are working you just go on to these site, और अगर आप मनी कंट्रोल का ऐप भी इंस्टॉल करोगे तो आपको वहां पे भी वो डिटेल मिल जाएगी. Now what is bid price? Bid price is the price at which the buyer is standing. B means buyer, bid buyer. तो जो भाव पे बायर खड़ा है उसका भाव यहाँ पे दिखाया जाएगा. अभी मार्केट क्लोजेस के लिए यहाँ पर 0 है. ओके, और क्वांटिटी भी 0 है. तो जो बायर खड़ा होगा उसका भाव दिखाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्वांटिटी दिखाएगा. द सेम इज द ऑफर प्राइस. ऑफर प्राइस मीन्स जो सेलर खड़ा है वो क्या भाव पे माल देने के लिए खड़ा है, और उसकी क्वांटिटी वो कितनी क्वांटिटी ऑफलोड करना है, उसको मार्केट में बेचना है. ओके, तो अभी हमने रिलायंस देख चुके हैं. लेट्स गो ऑन टू चार्ट्स नाउ एंड चेक हाउ द मार्केट्स हैव परफॉर्म्ड फॉर. अगर हम यहाँ पर देखें, दिस इज द चार्ट ऑफ निफ्टी. एज यू कैन सी निफ्टी लिखा हुआ है. निफ्टी का चार्ट है ये पिछले 2 साल का, एंड इट इज अ लाइन चार्ट, मतलब प्राइस मूवमेंट का चार्ट है ये क्लोजिंग बेसिस पे. मतलब जब रोज निफ्टी बंद हुआ था तो ये प्राइस अपडेट होता था. ओके, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 2 साल का चार्ट है. हम देख रहे हैं हमारी मार्केट्स ग्रो ही हो रही थी, और एक्चुअल फॉल बिगिन हुआ था 26 फेब नियरली. सो इफ यू चेक ऑन द चार्ट्स, आप यहाँ पे नजर रखना, यहाँ पे आपको डेट मिलेगी. अगर हम देखें 2602 ओपनिंग था निफ्टी का पर्टिकुलरली. जो निफ्टी अभी हमने 10 जो निफ्टी की बात की थी हमने, विच वाज एट 10,000 ऑन फ्राइडे, यही निफ्टी का फॉल शुरू हुआ था कहाँ से, 11,780 से. मैं हाई ले रहा हूँ. ओके, 26 to 20 मींस 26 फरवरी, यहाँ से हमारा फॉल शुरू हुआ था निफ्टी का, विच इज द कोरोना क्राइसिस इरप्टेड इन फरवरी में. तो इंडिया भी लॉकडाउन में नहीं था, everything was working. But why did the market start falling is more important, because market considered coronavirus as a global issue. It was hampering the economies globally. So when I mentioned in my previous slides that if the issue is affecting globally, it has to affect Indian market. Due to corona crisis affecting the Indian markets, the Indian market started falling in Feb itself. जब हम देखेंगे यूएस मार्केट गिरी, चाइना में इतना अफेक्ट हो गया कोरोना वायरस का, तो जिस वजह से हमारी मार्केट भी फेब में गिरने लग गई. अब हम देख रहे हैं, अगर मैंने जैसे आपको बताया, अगर आपको लगता है कि कोरोना इतना अफेक्ट करता, आप अगर यहाँ पर होते और आपके इन्वेस्टमेंट्स होते तो आप यहाँ पर ही एग्जिट कर लेते थे. समथिंग अराउंड 11,000 यहाँ पे एग्जिट कर लेते थे अगर आपको लगता था. और ये इतना लिक्विड है कि आप कभी भी चाहो कभी भी बेच सकते हो. ऐसा नहीं है कि भाई
अभी तो कोरोना क्राइसिस आ गया, कोई बायर नहीं आएगा. दिस प्लेस इज वेरी लिक्विड. स्टॉक मार्केट इज वेरी लिक्विड. बायर एंड सेलर हमेशा रहता ही है यहाँ पे. यहाँ ट्रांजैक्शन ही तब होते जब बायर एंड सेलर. देयर आर ह्यूज, हम लोग पीनट्स है उसके सामने, ऐसा बोलूंगा तो चलेगा. तो दिस फॉल बिगिन, आपने अगर इन्वेस्टमेंट यहाँ एग्जिट कर लिए, द फॉल बिगिन फ्रॉम 11,700, इट केम डाउन नियरली ऑन निफ्टी, मींस ऑन द इंडेक्स वी केम डाउन टू 7,600 रुपीज. 11,700 से मार्केट्स गिरने लगी, 7,600 तक आए. अब इस मार्केट के अंदर जब फॉल हो रहा था तभी भी बहुत सारे ट्रेडर्स थे जिसने एक्चुअल में पैसे बनाए. Now they had knowledge on how to make money. When they can, why can't we grab the opportunity, have the knowledge and start making money? तो अगर आप देखें तो 11,700 से गिरने लगे और हमारे 7,500 तक का. And then we started recovering in the month of April. You can see the date 24/3 को ये लास्ट बॉटम बना यहाँ पर. उसके बाद हम नियरली अप्रैल से रिकवरी हमारी शुरू होने लगी कि द मार्केट स्टार्टेड राइजिंग नाउ. ओके, सो अगर मैं बोलूँ आपने आपके इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे एग्जिट कर लिए समवेयर अराउंड 11,700, and when you saw 7,500 से markets recover होने लगी, the low was created at around 7511. This is showing 7522 on closing basis, but the low is 7511. तो जैसे ही मार्केट्स की रिकवरी शुरू हुई, आपको लगा कि मार्केट्स में अगर आप देखोगे ये चार्ट तो सीधा स्टैंडिंग फॉल है, एक वाटरफॉल रहता है वैसा फॉल है ये. So we can see when the recovery started and you think the recovery हो रही है अब मार्केट्स में, तो मेरे को इन्वेस्टमेंट्स करना है. तो मैं अगर 7,500 नहीं 8,000 के करीब भी अगर इन्वेस्टमेंट करता तो आज मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है? नियरली द लास्ट ईयर वाइट प्राइस 10,142. लेट्स एक्चुअली सी कि हमने रिटर्न कितना बनाया है. कैन यू गाइस सी द कैलकुलेटर हियर आई हैव पुट इन ऑन द स्क्रीन? तो अगर हम देख रहे हैं तो हमारा जो 8,000 इन्वेस्टमेंट था उसकी वैल्यू आज कितनी है? नियरली 10,100. 100 रुपीज फिर भी मैं छोड़ दिया. आई कंसिडर ओनली नाउ. इज इट विजिबल? अब हम देखते हैं हमारा जो इन्वेस्टमेंट था 8,000 रुपया अगर हम मार्केट में लगाते थे, अगर हम 8,000 रुपया मार्केट में लगाते थे तो उसकी आज की वैल्यू थी 10,100. नाउ आई एम नॉट टेलिंग यू नीड 8,000. हम एक पर्टिकुलर कंपनी का लेके उसका भी पर्टिकुलर कंपनी का चार्ट देखेंगे. तो मैं जो यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि जब रिकवरी आई और अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते तो आपके इन्वेस्टमेंट्स में कितना एक्चुअली आपने बना लिए थे. तो मैंने जैसा बताया आपको चार्ट पे 8,000 पे आपने इन्वेस्टमेंट किया, मतलब के, और आज आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 10,000 रुपीज. 10,000 माइनस 8,000 रुपीज इक्वल्स 2,000. अगर मेरे को रिटर्न्स कैलकुलेट करना है तो 2,000 मेरा प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय द इन्वेस्टेड अमाउंट विच इज 8,000 इनटू 100. मैंने 25% रिटर्न बना लिया. कितने टाइम में बनाया 25% रिटर्न? मैं अप्रैल में 8,000 बोला था, तो अप्रैल से लेके अभी जून आया है, अप्रैल, मई एंड जून, इन द मैटर ऑफ जस्ट 3 months मेरा जो वेल्थ था वो मल्टीप्लाई हो गया कितने टाइम से? 25% से. मतलब अगर मैंने 1 लाख रुपया लगाता था तो मेरे आज 1 लाख की वैल्यू थी 1,25,000. अगर मैं डायरेक्टली मार्केट में इन्वेस्ट करता, मैं कोई कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ मार्केट की बात कर रहा हूँ, मार्केट एज अ होल. ओके, अगर मैं 8,000 लगाता तो मेरा आज 8,000 की वैल्यू हो जाती थी 10,000 रुपया, विच इज 25%. Now let's go on to a particular company to check out. Now let us I hope you guys can see the chart. The Nifty chart is put on the screen. Yes. Let's move on to a company which we talked about just now, the favorite of investors, Reliance.
रिलायंस का चार्ट है, हमने देखा 26 फेब से फॉल होना, आपको यहाँ पे डेटा मिल जाएगा, जो ये डेट्स चेंज हो रही है जैसे में से मेरा कर्सर हिल रहा है, तो आपको वहाँ पे डेटा मिल जाएगा 26 फेब, विच मीन्स यहाँ से हमारा फॉल शुरू हुआ था, 2% नीचे बंद हुई थी रिलायंस वो दिन, प्राइस था 1400 रुपीज। अगर आप रिलायंस के इन्वेस्टर थे और आपको लगता है कि कोरोना वायरस का इम्पैक्ट आएगा रिलायंस पे, आप आपके रिलायंस के शेयर्स बेच सकते हो कभी भी। अगर आप नहीं भी बेचते तो इतना फॉल आने के बाद भी दिस पर्टिकुलर कंपनी हैज रिकवर्ड नियरली एंड इज, अगर आप 1400 के करीब भी अगर आप खरीदते तो आज आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 1582। अगर आप बेच भी देते तो आप लो पे और खरीद सकते थे, मगर जिसने बेचा नहीं था ये सोच के कि रिलायंस इज हिज फेवरेट कंपनी, ही वांट्स टू बी अ ओनर ऑफ द कंपनी एंड ये कंपनी आगे जाकर परफॉर्म करेगी, इसका प्राइस वापस ऊपर आ जाएगा, तो दिस पर्टिकुलर कंपनी ये जो भाव नीचे आया उसने पूरा रिकवर कर दिया। मैं पर्टिकुलर कंपनी की बात कर रहा हूँ। हम देखें इंडेक्स पे जो पूरी इक्विटी मार्केट एज अ होल को गॉज करने का एक तरीका है, उस पे 25% ग्रोथ आया। दिस पर्टिकुलर कंपनी अगर हम कैलकुलेट करें तो जैसे मैंने वहां पे अप्रैल में लोज बने थे, उसके बाद या अगर आप देखोगे तो नियरली कंपनी केम डाउन अंटिल 884 रुपीज। अगर मैं बोलूँ 884 भी नहीं, 980, समवेयर अराउंड 1000 रुपीज भी मैं अगर इन्वेस्ट करता था रिलायंस में, ये सोच के कि रिकवरी आने लगी, आप देखो डायरेक्ट सीधा फॉल है यहाँ पे। अगर यहाँ मैं देखता हूँ रिकवरी आने लगी, मेरे को लगता है कि रिकवरी आ रही है, एंड आई मेड इन्वेस्टमेंट अराउंड 1080, 1100 रुपीज। आज मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है? 1582। अब अगर हम इक्विटी मार्केट्स में देखें तो हमने 25% रिटर्न्स बनाए। अगर हम इसी चीज को रिलायंस पर्टिकुलर कंपनी में देखते हैं, जैसे पर्टिकुलर शेयर में रिलायंस में, तो हम देखते हैं हमने कितना रिटर्न्स बनाया एक्चुअली। कैन यू गाइस सी द कैलकुलेटर? यस, अगर हम देखेंगे तो अगर हम देखते हैं तो अगर हम वी टॉक्ड अबाउट इन्वेस्टिंग जब पूरी रिकवरी आने लगी, वरना प्राइस मूवमेंट्स पे इन्वेस्ट करके मतलब नहीं। तो हमने जब देखे कि नियरली लो बनाई, अब कंपनी ऊपर आने लगी है रिटर्न, तो मैं अगर 1100 के करीब भी अगर रिलायंस का शेयर ले लेता तो आज मेरे वही पर्टिकुलर शेयर की वैल्यू कितनी है? 1582। लेट्स कैलकुलेट हाउ मच मल्टीप्लिकेशन इज बीइंग डन, कितना परसेंट रिटर्न्स मैंने जनरेट किया। अगर मैं 1 लाख रुपए लगाता तो मेरा कितना बन जाता? मैंने 1100 पे इन्वेस्ट किया और आज वो 1100 की वैल्यू कितनी है? 1582 माइनस माई इन्वेस्टेड अमाउंट, दिस इज माई प्रॉफिट ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1100, percentage return is nearly 43%. This is crazy, this is insane. I mean in the matter of just 3 months you are generating 43% returns. आप समझ रहे हो? 43%, मतलब अगर आपने 1 लाख रुपया लगाया तो आज आपकी 1 लाख की वैल्यू है 1,43,000, और वो भी 3 महीने के अंदर, घर पर बैठकर आपके कन्वीनियंस के हिसाब से। The most important thing here is the generation of returns. आप कितना पैसा मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप कौन सी कंपनी खरीद रहे हो। मेरा ये बताने का ये मकसद नहीं है कि भाई आप कल के कल आ जाओ मार्केट में, यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, यू स्टार्ट मेकिंग मनी। ये जो थी ये अच्छी कंपनीज की बात है। टुमारो सेशन वी वुड बी इवन डिस्कसिंग ऑन हाउ टू गो एंड फाइंड अ कंपनी, हाउ टू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर कंपनी। ओके, अब ये जो रिलायंस है ये सबको पता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज है भाई, अंबानी की कंपनी है, दिस इज गोना परफॉर्म, दिस इज फेवरेट इन्वेस्टर्स कंपनी, और इसमें हर कोई इन्वेस्ट करता है। आप भी अगर फ्यूचर में स्टॉक मार्केट में कदम रखोगे तो आप भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करना प्रेफर करोगे, बिकॉज दिस कंपनी टेक केयर ऑफ शेयर होल्डर्स एंड कीप्स ऑन मल्टीप्लाइंग द वेल्थ। अगर हम यहाँ पे भी देखें तो 800 रुपए से नियरली ग्रो करके कंपनी कहाँ तक आ गई? 1582 तक का, और मेरी वेल्थ कितने से बढ़ गई? 43% से। मतलब अगर 1 लाख लगाया तो आज 1 लाख की वैल्यू कितनी हो गई? मेरी 1 लाख की वैल्यू आज हो गई, आज मेरी 1 लाख की वैल्यू हो गई 1,43,000। सो ये जो हमने स्टॉक मार्केट का इंडेक्स देखे कि कभी भी लॉन्ग टर्म में ये परफॉर्म किया है। आई होप यू गाइज गॉट व्हाट वाज द एम, कि आप आओ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है ये सेशन में पर्टिकुलरली, यू कैन मैसेज मी पर्सनली ऑन व्हाट्सएप। आई वुड बी क्लियरिंग योर डाउट्स इन टुमारो सेशन। इफ नॉट टुमारो, अगर आज ही पॉसिबल रहा तो मैं आज ही आपके डाउट्स व्हाट्सएप पे क्लियर कर लूंगा। Tomorrow also we would be having a session same time 4 p.m. The link would be shared on the group itself and you guys can connect over to me. So आज हमने क्या क्या देखा? आज हमने स्टॉक मार्केट
में कैसे इन्वेस्ट करना है, स्टॉक मार्केट क्या है, बेसिक्स पहले समझा हमने कि स्टॉक मार्केट क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हाई रिटर्न्स हुआ, लिक्विडिटी देखा, कॉस्ट इन्वेस्टमेंट का कम है, डिविडेंड मिलेगा जिससे जनरेशन ऑफ इनकम होगी हमारी, कैपिटल गेन्स मिलेंगे, लो इन्वेस्टमेंट नीडेड है मेरे को, और ओनरशिप मिल रही है कंपनी में, कन्वीनियंस की जैसे बात हुई है, कन्वीनियंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड मेरे को जो चीज सबसे ज्यादा पसंद आती है अगर स्टॉक मार्केट में रहने के लिए तो वो है कन्वीनियंस। मैं मेरे घर पे मेरे काउच पे बैठ के मैं अपना काम कर सकता हूँ। दिस इज द बेस्ट थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई लाइक अबाउट। उसके बाद हमने क्या देखा, we talked about stock exchange and the economic problems affecting the stock market. We are globally connected emerging economy. What all do we need for investing in a stock market? उसके बाद हमने देखा कि हम डीमैट अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। आई वुड बी शेयरिंग अ लिंक, इफ यू गाइस नीड यू कैन जस्ट पिंग मी अप, जिसको इसको चाहिए मैं उसको लिंक भेज दूंगा। तो आप, एक ज़ेरोधा ब्रोकर है विच चार्जेस अराउंड 300 रुपीज अकाउंट ओपनिंग फीस, विच इज वेरी मिनिमल। 300 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है एक अकाउंट ओपनिंग करने के लिए लाइफ टाइम के लिए, और डीमैट अकाउंट कभी भी काम आता ही आपको। कल हम एक और ऐसी टेक्निक देखेंगे जहां पर आप डीमैट अकाउंट के जरिए यू कैन मल्टीप्लाई योर वेल्थ, एंड आई विल बी गिविंग अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स फॉर टुमारो सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टू। आप यहाँ पे देखिए कि कैसे डीमैट अकाउंट ओपन करना है हमको। देन वी टॉक्ड अबाउट इंडाइसेस, हाउ टू गॉज मार्केट्स, हमने देखे कि इंडेक्स कैसे परफॉर्म किया है। सो टुडे ये मेरा फर्स्ट सेशन था, तो मैंने आप लोग को इतना बताया। एंड मैं जो आज बता रहा हूँ, टू बी हॉनेस्ट, इट इज अ ड्रॉप ऑफ द ओशियन। आपको अगर सीखना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी नॉलेज हासिल करनी पड़ेगी, देन यू कैन मेक मनी अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। ओके, सो वी आर डन फॉर टुडे। वी वुड बी कनेक्टिंग टुमारो 4 p.m. I would be sharing the link on the group, and then you can connect over me. If anyone has any doubts, you can connect to me over WhatsApp, and we can solve your doubts. Thank you everyone for attending the session. We shall meet tomorrow. Okay, take care, stay home, stay safe. Bye.